So, good afternoon, all of you. Today you have been seeing what is this, okay? And I will go through the examples and towards the concept. Okay, what is this? Say, what is this? You are looking this object, which kind of the object, shape, size, and what? Cylinder. Okay, so cylinder, what is cylinder? Has what are you looking here? If what is this? Circle. What is this? Circle. Okay, so in cylinder, first thing is that is just like this shape. Okay, both top is circular, bottom is circular. Okay, so we have the how many geometrical figure with us. Okay, first circle, second circle. Okay, now what happened? How can you prepare, how can you figure out this शेप? आप कैसे बना सकते हो इस शेप को? कैसे बना सकते हैं आप लोग? बना सकते हैं इसको? प्लीज गिव मी पीस ऑफ दैट कवर ऑफ द नोटबुक. Yes, take out it. Yeah, please give me. Okay. What is the shape of this sheet? Rectangle. Okay. Now I try to make it is cylinder. Okay. So rectangle, what is the rectangle? What is this dimension of rectangle? Width, and that is the length. Okay. And what did I do it? With the fold in this way, okay, what did I prepare? Cylinder. Okay, we can prepare in the way just like this way, S to S. Okay, so what happened with it? Now you can understand. Okay, so what is it? Has the height. Okay, so what is the height of the cylinder? Now tell me. What is the height of the cylinder? Okay, this cylinder, if I talk to you about, this is cylinder. Okay, so what is in rectangle? That is the breadth and that is the length. So length of a rectangle will become the height of the cylinder. Okay, that was same thing. It was the open cardboard, then it wrapped in this way. Okay, so it will become the cylinder. Now, what is the circumference of the circle? Circumference उसकी क्या होगी? जो ब्रेड्थ है वो रहेगी. ठीक है? That is the cylinder. Okay, so what happened with it? Yes, so here I want to that means explain you what is the concept of the cylinder, how cylinder comes into existence. Okay, at the first whatever I taught you, okay, that is the rectangle, piece of a sheet. Okay, that is the breadth and that is the length.
ओके, वेदर द लेंथ, इसको लेंथ मान लो या इसको ब्रिथ मान लो. ओके, दैट इज लेंथ एंड ब्रिथ. ओके, सो व्हाट एवर. नाउ when we make it the cylinder, so what will happen then? That is the circle. जब मैंने इसको टर्न किया ऐसे यहाँ से, ये ओके एंड मेक इट in this way. So the B, height of the cylinder, okay, and L equal to two pi r. Correct or not? Circumference of the circle. Okay, circumference of the circle 2 pi r. So what will happen then? 2 pi r. So if that is called the curved surface, इसको क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, तो ये क्या कहलाएगी? कर्व्ड surface. Okay, this is curved surface. So if what is the area of this rectangle? Area of rectangle क्या होता है? L into B. So अगर मैंने इसको पूरा खोल दिया, यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय विच द सिलेंडर इज मेड इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर. समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस इससे ही बना है ना, और हम क्या चाह रहे हैं उसको. अब इसका एरिया क्या होगा? ये जो है सरफेस एरिया इसका, ये जो एरिया है ना, यही एरिया इसका कर्व्ड एरिया होगा. तो कर्व्ड एरिया क्या हो गया? अब यहां पर क्या होगा? L इंटू बी होता है ना. तो यहां हम क्या लेंगे इसको? 2 पाई r इंटू एच. आ गया फार्मूला? मतलब समझ में आ गया आपको? अब होल सरफेस की बात की जाए, होल सरफेस, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी हिस्सा भी, है ना. तो अब इसमें क्या होगा? पाई आर स्क्वायर दिस प्लस पाई आर स्क्वायर दिस, एरिया ऑफ सर्कल. और कितने पाई, कितने सर्कल है इसमें? 2 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें 8 करना पड़ेगा. किसमें? इस वाले में. दैट इज द डेरिवेशन. सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत होगी. ये तो हो गई आपकी हाइट, है ना. यहाँ से यहाँ तक का होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, आप ऐसे करके इस सिलेंडर को मेज़र कर सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो, चाहे बेलन हो, चाहे ग्लास हो, चाहे टम्बलर हो, चाहे पाइप हो, आप बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, और विदाउट, ये बहुत कॉमन लाइफ में काम आने वाला है. सैनिटरी वाला आता है, सैनिटरी वाला जो प्लम्बर, वो आपके घर आता है, वो कहता है इतना फीट पाइप लगेगा, है ना. तो लेंथ उसकी हाइट लगेगी, लेंथ लगेगी. फिर वो कहता है कि अच्छा हाफ की कोनी, है ना, इसका वो रिड्यूसर लाना पड़ेगा, और ये बहुत सारी चीज़ें वो लाता है. फिर क्या होता है कि उस 2 पाइप को जॉइंट करना है ना. सपोज करो इसके जैसा एक पाइप और है ना. किसान है तो उनको भी इतने मोटे पाइप करना पड़ते हैं. एक पाइप और लाए. अब इससे बड़ी डायमीटर वाला लाएंगे तब जाके वो इसके अंदर चूड़ी पहनेंगे, नहीं तो कैसे पहनाएगी.
सो इसके बगैर उनके दिमाग में, वो भले मैथमेटिक्स पढ़े नहीं हुए पर एक्सपीरियंस से वो पूरा काम करते हैं, पर उनका गणित चलता है कि कितने का कितने में लगेगा, है ना, कितने मेजरमेंट, कितने का मतलब है कि मेजरमेंट उसके डायमीटर से। तो बात आ जाती है दोनों तरफ में, यहाँ हो जाएगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हाइट आपकी हो गई, और यहाँ से ले लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, डाया बोलते हैं इसको, डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डाया हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक और चीज आप देख रहे हैं कि अंदर इनर डाया है ना, इनर डाया मतलब ये जो अंदर का जो है इनर डाया, ये और आउटर डायमीटर, इन दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि इट हैज द थिकनेस। इसमें क्या है, ये इसमें थिकनेस है, ये जो है ना ये थिकनेस है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इस तरीके की बात करते हैं, होलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें चलेगी एक साथ सिलेंडर में, ठीक है। ये हो गया आपका यहां से यहां तक R1, और यहां से यहां तक जो है ये वाला जो है, ये यहां से यहां तक R2। इनर रेडियस इस पॉइंट से लेके अंदर तक की रेडियस, और फिर इधर इस सरफेस से लेके अंदर तक की रेडियस। समझ में आ रहा है आपको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका सिलेंडर का कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरीके से सिलेंडर 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th, 10th इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरा एक चैप्टर ही है सिलेंडर का, 2πRH। अब सम्स कैसे बनेंगे उसमें देखिए, एक और सम्स कैसे कैसे आते हैं। एक तो सिंपल है, हाइट इज गिवन, रेडियस इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस, होल सरफेस। अनदर काइंड ऑफ दिस पाइप, अगर मैं इसको कवर करना चाहूं किसी कपड़े से, आपकी स्लीव बनती है कि नहीं बनती, वो नापता है ना, यहां से नापता है ना बॉडी, ये भी सिलेंड्रिकल है, दैट इज द सिलेंड्रिकल हमारी बॉडी। वो यही कर, अगर इस पूरे अपने पजाम, पेंट तो बिल्कुल क्लियर सिलेंड्रिकल है ना, वो सारी चीजें अपनी नाप लेता है, उससे कम हो जाए तो फिर फंसता है ना। और हमारा से हम अगर फैट हो जाते हैं तो फिर फंस जाता है वो, फिर नीचे बैठ के खींचो उसको, दूसरे से खिंचवाओ, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो पूरा सिलेंडर मेजरमेंट क्लॉथ में, डिजाइन में, उन सब में इसका जरूरत होता है। और हम लोग क्या है कि उसको डिनाई कर, मतलब इग्नोरेंस जो है, जिसको इसका नॉलेज नहीं है कि कितना काटना है, क्या काटना है। देखिए एग्जैक्ट इतना इसमें इसको हमको कवर करना है, ऊपर से नीचे तक ऐसी इसके पाउच बनाना है, तो हमको कितना मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्लॉथ की। मैक्सिमम तो कितना भी आप बिगाड़ दोगे काट के, पर मिनिमम जो है वो फिक्स इसमें आना चाहिए, कपड़ा बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। जो टेलरिंग का काम करता है वो कपड़ा बचाने की बात करता है, बचाता है ना, क्यों जितना भी है, ताकि अपने बच्चों के कपड़े बच जाए, है ना। सो दैट इज द, वो सारी चीजें। तो अब वो क्या करेगा, इसकी हाइट कितनी है ना, इसका ये कितना आएगा इनर डाया, इसके हिसाब से एक चक्री यहाँ काटेगा कपड़े की, ठीक है, दूसरा एक रेक्टेंगल काटेगा, फिर इस चक्री में वो उतना पीस निकालेगा, ज़्यादा निकालेगा जहाँ पे उसकी स्टिचिंग होगी, क्योंकि स्टिचिंग में वो दब जाएगा, तो फिर वो उस तरीके से उसको पूरा पहनाएगा। इस तरीके के कितना लगेगा, ठीक है। दूसरा ये होगा कि ये जो है ना, इसमें से कह दो कि 1 इंच की कितनी बेंगल्स निकाली जाती है, आया समझ में भाई, ये कितना है 1 इंच की या 1 सेंटीमीटर की कितनी नंबर ऑफ बेंगल्स कितनी बनेगी, ठीक है, वो उस तरीके के सम बनेंगे, है ना। इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल आपका टैंक है, वाटर का टैंक है। वॉल्यूम की बात हो जाती है तो πr² में आ जाते हैं हम, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या है, ये ऊपर का, ये नीचे का, और ये हाइट, इसमें कितना पानी आएगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। आ गया समझ में। तो वॉल्यूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप पानी का टैंक बना रहे हो, पानी का टैंक बना रहे हो तो उसमें चाहे वो किसी भी शेप में हो, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीजें उसमें वो करती है, मतलब वेरी करेगी उसको, क्योंकि आप जो बनाना चाह रहे हो तो आपको कितना 1000 लीटर वाटर टैंक बनाना है आपको, 1000 लीटर जिसमें पानी आ जाएगा, तो आपको क्या साइज बनाना पड़ेगी 1000 लीटर के लिए।
अब हमारे यहाँ जो मिस्त्री वो कैसे काम करता है, 1.5 टैंकर, आधा टैंकर, 2 टैंकर पानी आ जाता है। आया समझ में? अपना जो बाहर का टैंक है उसमें 3 टैंकर पानी आता है। हाँ 3 टैंकर पानी आता है, 3 टैंकर इतना बड़ा टैंक है वो। सो दैट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में, हमारी लाइफ में हमको मेजरमेंट आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब जैसे ही वॉल्यूम की बात होती है तो ये हो गया इसका क्या, पाई आर स्क्वायर, और हाइट पाई आर, ये हो गया पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, है ना। ये पूरा हो गया सिलेंडर, मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। अब एक और चीज़ होती है, एक और तरीके के सम आते हैं इसमें, ठीक है। वो कहता है कि आप यू हैव अ रेक्टेंगल शीट ऑफ द पेपर, ये रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर, एंड फ्रॉम इट्स ब्रीथ विड्थ, विड्थ के अकॉर्डिंग आप इसको रोल कर रहे हो। ओके, ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, इसकी ब्रीथ के अकॉर्डिंग। ओके, सो द डिटरमाइन द volume of the geometrical shape which made by this sheet after rotated, okay, with respect to its breadth। उसका एक कहना है कि आपको एक रेक्टेंगल शीट दी गई है ना, जिसकी ये जो है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो, और इसकी जो ये है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो ब्रिड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है, लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लेंथ के रिस्पेक्ट में आप इसको ऐसे घुमाते जा रहे हो, तो जो शेप बनेगा उसका वॉल्यूम, उसका कर्व्ड सरफेस और उसका होल सरफेस आपको निकालना है। तो अब ये कौन सा बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। जब मैं इसको घुमाऊंगा ना तो पूरा गोला बन रहा है ना सिलेंडर। तो ये हो गई उसकी रेडियस, ये हो गई उसकी हाइट, आ गया समझ में। 8 सेंटीमीटर हो गई उसकी रेडियस, और ये हो गया उसका हाइट, ठीक है। और फार्मूले में आप रखो और निकालो। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा, है ना। और सिलेंडर मैंने बता दिया है, इसमें डॉगी की आवाज़ आ गई होगी।